Hello everyone, we have already started the chapter third from your Beehive section, the little girl. Okay, now in this chapter we have already read some few paragraphs and we know that the theme of this plot of this chapter is that there is a girl, a little girl who is scared of her father. So let's begin our remaining part. इससे पहले हमने पढ़ा था कि उसके फादर जब ऑफिस जाते हैं उसको पैम्पर करते हैं, वापस जब लौटते हैं तो ऑन द उसकी मदर के कहने पे वो उनकी शूज़ जो है वो उसको खोलती हैं. नाउ so again we see Kezia's fear for her father. That is why we can say कि उसके जो father हैं उससे वो बहुत डरती है. She would come down the stairs quietly and unwillingly because she did not want to face her father. Okay, जब वो अपने father को जब आती है तो वो face नहीं करना चाहती because she was we can say बहुत ही terrified होती हैं, डरी हुई होती है. It seemed to be that her father he was staring her एट हर, क्योंकि उसके फादर जब वो देखते हैं उसको देखते हैं तो वो डरती हैं थ्रू द स्पेक्टल्स. वो स्पेक्टल्स से उसके फादर जब देखते हैं तो वो बहुत डर जाती है. शी वॉज स्लो इन हर मोशन एंड हर फादर वुड हर टेल हर टू हरी अप एंड रिमूव हिज बूट्स. ओके, हमने ये पढ़ा था कि वो उसके पास आती है और शूज़ उतारती है तो वो थोड़ी डर जाती है. एंड नाउ उसके फादर जब उसे शूज़ उतारने के लिए बोलते हैं एंड कीप देम आउट ऑफ द रूम एंड देन ही वुड आस्क हर इफ़ शी हैड बीन अ गुड गर्ल दैट डे एंड केजिया रिप्लाइड दैट शी डिडंट नो. So why was she stammering? Because she wasn't confident. A person is not confident when when he has any feeling of fear. So at that moment Kezia was feared of her father. नाउ उसके फादर जो है वो कहते हैं सो हियर केजियाज फादर इज़ कॉपिंग हर, उसको कॉपी करते हैं. एंड ही ऑल्सो स्टैमर्स लाइक शी डिड. ही सेज टू हर केजिया से बोलते हैं डेट शी स्टटर्ड लाइक, मतलब जो स्टैमर्ड करती हैं या हकलाती हैं, देन उसकी वो बोलते हैं कि उसकी मदर को जो है उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. सो हियर द राइटर्स टेल अस दैट द केजिया नेवर स्टैमर्ड वाइल शी स्पोक टू अदर पीपल. उसकी मदर बोलती हैं या उसके जो राइटर हैं वो हमें बताते हैं कि वो किसी और से बात करती है तो कभी नहीं स्टैमर करती हैं. नाउ इट वॉज ओनली व्हेन शी टॉक टू हर फादर that she lacked confidence and that's why she tried very hard to speak properly and she stammered. Now Kezia's father look at her. He feels that something is wrong with her and he asks that why she is so unhappy, and then he tells the mother that she should teach Kezia to behave in a better way and she should not appear as if she so unhappy that she is about to end her life. Now her father wants to say Kezia seems to be so unhappy with her life that she did not want to live any longer. मतलब अगर तुम ऐसे रहोगी तो तुम एक लंबी लाइफ नहीं जी पाओगी. So her hands and he hands her his teacup and asks her to place it back on the table. Here is the feeling that this is the vision that Kezia has for her father. She feels that her father was so big. ओके, सो हर फादर वॉज सो बिग एंड उसके जो नेक है, माउथ है, वो बहुत ही स्पेशली बड़े होते हैं जब वो यौन करते हैं, उबासी लेते हैं. इट सीम्ड एज इफ़ ही वॉज अ ह्यूज मॉन्स्टर. वो सोचती कि उसके फादर जो हैं एक बहुत बड़े मॉन्स्टर हैं. शी वॉज थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, और वो सोचती कि उसके फादर जो हैं वो. So every Sunday during the afternoon, Kezia's grandmother sent her downstairs to the drawing room in order to spend time with her parents. So here Kezia is supposed to behave in a nice and decent way in front of her parents, and they had a formal get together. Here we feel that Kezia felt a bit neglected every Sunday afternoon when she went to her parents to meet them in a drawing room and have a nice talk with them. They were busy in doing their work. Okay, सब जो केजिया के पेरेंट्स हैं, मदर हैं, सब अपने बिजी रहते हैं. उसके फादर हैं जो सोते हैं, स्नोरिंग करते हैं एट द टाइम आफ्टरनून इन द ऑन संडे. सो केजिया हैड दिस इमेज ऑफ हर पेरेंट्स इन हर माइंड that they didn't talk with her and they didn't spend time with her, और उसके साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करते. ऑन द अदर हैंड दे वर बिजी डूइंग देयर ओन थिंग्स. तो
उसने ये मान लिया कि उसके पेरेंट्स को बिल्कुल टाइम नहीं है और वो अपने काम में बिजी रहते हैं. सो ऑल द वाइल केजिया's फादर वॉज asleep. शी वुड जस्ट सिट ऑन अ स्टूल एंड वॉच them carefully till the time he would wake up and stretch his body and would ask the time and look at her. नाउ केजिया के फादर सोते हैं और वो थोड़ा सा और वो उनको देखती रहती है. नाउ केजिया's फादर वुड कंपेयर केजिया टू अ लिटिल ब्राउन आउल. ही वुड से डैट केजिया वॉज स्टेरिंग एट हिम जस्ट लाइक एन आउल. तो केजिया जब उनके फादर को देखती है तो वो केजिया फादर बोलते हैं कि तुम बिल्कुल उल्लू की तरह मुझे देख रही है, आउल की तरह, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा ही देखता है. नाउ केजिया वॉज नॉट वेल. शी हैड अ कोल्ड. ओके, सो she was supposed to stay at home, so her grandmother suggested to that as she was at home and her father's birthday was approaching, so वो उसको बोलती है कि आप अपने फादर के बर्थडे के लिए एक गिफ्ट बनाइए, जो एक कुशन होता है, पिन कुशन जो होता है वो बनाइए, और सिल्क का उसका फैब्रिक देती है. नाउ केजिया हैड प्रिपेयर द बैग एंड द शेप ऑफ अ कुशन. सो वो उसको स्टिच करती है 3 साइड से, एंड द 4th साइड उसको थोड़ा सा एक तरफ से खाली रख देती है ताकि उसके अंदर कुछ स्टफ़ फिल कर सके, सो डैट शी कैन फिल द स्टफ़ टू मेक अ फ्लफ़ी कुशन. नाउ हियर केजिया वॉज कन्फ्यूज डेट वॉट शुड शी यूज़ टू फिल द कुशन विथ, एज हर ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन. वो बाहर होती हैं तो वो थोड़ा सा 3 साइड कंप्लीट हो जाते हैं, बट अब उसको लास्ट में फिल करना पड़ता है. सो शी रीच्ड हर मदर्स बेडरूम. शी वॉज लुकिंग फॉर बिट्स ऑफ पेपर और क्लोथ टू स्टफ इन द कुशन. नाउ तो वो कंफ्यूज हो जाती है और वो वहाँ जाती है अपने मदर के पास में, उनके रूम में. तो वहाँ कुछ पेपर्स होते हैं तो वो लेके उनको फाड़ के अपने उसमें फिल कर देती है. नाउ केजिया इज़ अ स्मॉल लिटिल गर्ल. इतनी छोटी होती है. सो वो वहाँ पे पेपर उठाती है. शी जस्ट गैदर्ड ऑल द शीट्स एंड देन टोर दैम एंड स्टफ दोज पीसेज इनटू ऑफ पेपर इनटू द cushion, and then she stitched the 4th side of the cushion and prepare a birthday gift for her father. So many हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि बहुत सारे अपने पेरेंट्स को या कुछ देना होता है तो हम ऐसे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. तो यहाँ पे ये भी ऐसे करती हैं कि बहुत सारे जो पेपर्स होते हैं उसको पता नहीं होता इंपॉर्टेंट होती है, उसमें फिल करना स्टार्ट कर देती. नाउ देयर वॉज अ लॉट ऑफ शाउटिंग इन द हाउस बिकॉज ऑफ केजिया's फादर हैड प्रिपेयर्ड अ स्पीच फॉर द पॉट अथॉरिटी. अब यहाँ पे कोई स्पीच के लिए उसके फादर ने कुछ पेपर रखे थे और वो मिसप्लेस हो गए थे. नाउ फैमिली सर्च एवरीवेयर. दे आस्क्ड द सर्वेंट्स बट नो वन न्यू वेयर द शीट्स ऑफ पेपर हैड गॉन, एंड फाइनली द मदर रीच द केजिया's रूम. और वहाँ पे जाके देखती हैं कि वहाँ पे पेपर फटे हुए होते हैं और वहाँ पे कुछ उसको मतलब पता चल जाता है. नाउ केजिया's मदर इज़ सो फ्यूरियस व्हेन शी कम्स टू नो दैट द केजिया हैज़ torn the speech that her father is looking for. So she orders Kezia to come down into the dining room at that very movement. Now Kezia's father is full of tension because उसके जो important documents थे वो गुम हो गए थे और उसने फाड़ के ऐसा बना दिया था. So this is enough for today. We will continue the remaining part in our next video.